Hello student, I am Varun Kumar Nishad from LPM school. In this video, we will talk about the chemical properties of acids and bases. In previous video, we are discussed about the indicators. Indicators are those chemical substances which are change their color and give the appearance of which given solution is acid or bases. The indicators are near about two types: natural indicators and synthetic indicators. Natural indicators includes litmus paper, which is extracted from the lichen, red litmus paper and blue litmus paper. And litmus paper are also in form of solution, red litmus solution and blue litmus solution. And turmeric. The synthetic indicators are phenolphthalein, methyl orange. These are the synthetic indicators, and some olfactory indicators that are vanilla, onion and cloves. So now in this video we are talk about the chemical properties of acids and bases. Acids and bases. Acids and bases. Chemical properties of acids and bases. So first we start study about the chemical properties of acid. सो किसी भी एसिड की या फिर किसी भी सब्सटेंस की हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं तो रिएक्शन देखते हैं कि इनका रिएक्शन किसी मेटल के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ, इनका रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस टाइप का होता है. नाउ वी विल सी रिएक्शन हाउ एसिड्स react with, it is a subheading, react with matter. React with matter. React with matter. What will happen? How acid react with metal? Yeah, what will happen if the metal react with acid? Now we see matter. Take, it is a setup which govern the experiment of the reaction of some metals, which is, it is addition of 5 ml of HCl, hydrochloric acid, and it is blocked by cork. The test tube is blocked by cork after filling the HCl, and again, but before blocking the test tube with cork, we have added the zinc metals, zinc metal piece, zinc metal piece, and we should give the support to the test tube, and the test, it also insists a delivery tube with connect to Soppy solution. These are the Soppy solution. This is Soppy solution. And after addition of zinc metal into the hydrochloric acid solution, some bubbles are start evolve, and these bubbles are going to
this delivery tube, go into this delivery tube and fall in soapy solution and bubble get raised. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. आप स्टैंड लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से होल्ड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी कई एसिड आप ऐड कर सकते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं. यू मे बी ऐड टू नाइट्रिक एसिड और मे बी एसिटिक एसिड. नाउ in this time we are talking about the addition of HCl, hydrochloric acid, and addition of zinc metal in it. And after addition of zinc metal in it, some bubbles start evolving, and these bubbles go into soapy solution via delivery tube. And on these bubbles are come in contact with soapy solution. They enlarge and evolve, and these bubbles are come in contact with burning candle. These bubbles are come in contact with burning candle. These are come in contact. It start burst, it produce pop sound, and this sound is produced only in presence of hydrogen gas. In this way, after this behalf of this experiment, we can say that the bubbles is evolved. It is a evolution of hydrogen gas. मीन्स बिल्कुल सिंपल सेटअप है. आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसके बाद आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद उसमें छोटा सा मेटल का पीस, कोई भी मेटल का पीस, जिंक का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, उसमें जब आप ऐड करते हैं तो जैसे ही आप ऐड करते हैं तो उसमें बबल्स इवॉल्व होना शुरू होता है. बबल्स जैसे ही इवॉल्व होते हैं उसके बाद फिर वो बबल्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द डिलीवरी ट्यूब और वो सोपी सोल्यूशन में, जैसे ही वो सोपी सोल्यूशन में एंटर करते हैं तो बबल्स बड़े साइज में इवॉल्व होते हैं और ये बबल्स कम इन कांटेक्ट, जैसे ही बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आते हैं, इट गेट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, स्प्रैटल करते हैं और पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और पॉप साउंड इज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब भी कभी भी पॉप साउंड की बात हो, यू आर ऑल बी कंफर्म इट इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ वी विल सी द ऑल phenomena happen come in express in chemical reaction or symbolic representation. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आपने सिर्फ जिंक का मेटल लिया, जिंक मेटल का पीस लिया था, उसके बाद आपने HCl ऑलरेडी था, ऐड करा था 5 ml आपने टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद ZnCl बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. Balance it with 2HCl, ZnCl2 plus H2 gas evolve. Means that अगर मेटल की जगह HCl की जगह अगर H2SO4 लेते हैं तो क्या होगा? H2SO4 लेंगे आप तो होगा ZnSO4 plus H2 gas and अगर आप HNO3 लेते हैं, HNO3 लेते हैं तो वो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2. यहां पे आप 2 कर देंगे क्योंकि यहां पे NO3 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है. तो आपने देखा कि डिफरेंट एसिड ऐड करने के बावजूद भी वो अपना सॉल्ट दे रहा है, जैसे जिंक. यानी कि किसी भी मेटल, कोई भी मेटल, व्हेन द मेटल react with acid, it produce metallic salt plus hydrogen gas. We can summarize that when the metal react with any acid, it produce
मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल, जिंक की जगह कोई और मेटल ले सकते हैं आप, जो भी मेटल होगा वो अपना सॉल्ट बनाएगा और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। नाउ वी कैन समराइज दैट, we can summarize that when the metal react with metal plus acid, it produce salt or metallic salt plus hydrogen gas. Hydrogen gas means that when the acid react with metal, it produce salt और मेटेलिक सॉल्ट, वो मेटल का ही सॉल्ट होता है तो मेटेलिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो हम सिंपल वे में उस तीनों रिएक्शन के बेसिस पे यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हैं मेटल प्लस एसिड will give rise to salt plus hydrogen gas. So it is the first chemical properties of acid, which is how acid react with metal. अब सेम जिंक का एक्सपेरिमेंट करते हैं एक बेस के साथ। ओके, what will happen what will happen when metal react with base, what happen? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक रेयर रिएक्शन होता है जिंक के साथ। What will happen when the metal react with base? तो जैसे एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से, तो मेटल को कैसे आप रिएक्ट करवा रहे थे? एक सिंपल टेस्ट ट्यूब में 5 ml आपने HCl लिया या फिर कोई भी एसिड लिया, उसमें आपने मेटल का टुकड़ा डाल दिया, तो वो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और मेटेलिक सॉल्ट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा। what will happen when metal react with base? So now we will see zinc. When we add zinc into sodium hydroxide solution is a base. तो बेसिक सोल्यूशन में हम मेटल का टुकड़ा डाल रहे हैं। व्हाट विल हैपन? क्या इसमें से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा? यस, इवॉल्व होगा। देखते हैं। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल हैपन? इट प्रोड्यूस Na2, very very important, Na2 ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट and it is rare. Such reactions are not possible to all metals। इस टाइप का रिएक्शन जो है और किसी मेटल के साथ नहीं हो सकता है, सिर्फ इसी मेटल के साथ होता है। सोडियम यहां पे बैलेंस आपको करना है, सिर्फ यहां पे बैलेंस कर देंगे आप। सोडियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, इसलिए आप यहां पे आप 2 कर देंगे, आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ये देखिए जिंक जो है, जिंक का पीस जैसे आपने एसिड में डाला था, वैसे जिंक का पीस आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला, तो वहां पे स्पेशल टाइप का कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट ये स्पेशल केस है, सिर्फ सोडियम जिंक के साथ ऐसा रिएक्शन देता है, ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है। बट ये कंपाउंड जो है, इस तरह का कंपाउंड और किसी मेटल के साथ नहीं बनता है, सिर्फ ये
It is rare. Such reactions are not possible. Are not possible to all metals. To rest of all metals. To rest of all metals. तो इस तरह का रिएक्शन और किसी मेटल्स में नहीं होता है। तो आपने केमिकल प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ा कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अगर सेम टाइप का इसी तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेस का, तो उसमें भी हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम मेटल का सहारा लेते हैं। तो मेटल का पीस हम बेस के सोल्यूशन में डालते हैं तो सिर्फ एक ही मेटल बेस के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, वो है जिंक मेटल। और जिंक मेटल का जो रिएक्शन है, जिंक मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इट प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम जिंकेट सॉल्ट क्यों बनाता है? क्यों जिंक का सॉल्ट नहीं बनाता है? क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म सोडियम जिंकेट। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी बर्डन, इट इज वेरी सिंपल। जैसे आपने एसिड के बारे में पढ़ा वैसे बेस के बारे में पढ़ा। अब कोई भी मेटल किसी बेस से रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जिंक करता है। ये रेयर कंडीशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में what will happen when the sodium metallic carbonate or metallic hydrogen carbonate react with acid. What will happen? We will discuss in the next video. Thank you.